A warm good morning to one and all. Myself Sheikh Asma. Today is our India's 77th Independence Day. First of all, I wish you to all happy Independence Day. Independence Day is an honor and a great gift. Heartfelt thanks to the sacrifices by our leaders. We are a free and independent nation of the world. A heartfelt morning to the respected principal sir, teachers and my dear friends. We have done so much to build our very own cultural heritage. Let us forget all our cultural differences and unite as one true Indian. India is celebrating its 77th Independence Day. Today on 15th August 2023 and celebrate Independence Day. Now without wasting any time, I would like to welcome our respected Principal Sir, Syed Zakiullah Basha, to hoist our national flag. Salute. Discuss. Now I invite Sheikh Sajba and Sheikh Sana Afra to sing Sare Jahan Se Acha. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता I invite Sheikh Suhana for our madrasa's pledge. Pledge. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं. हमारा मजहब इस्लाम है. हम अल्लाह के बंदियां. हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं. हम अपने वालिदैन की जान और मुआशरे की पहचान है. अवीम भारत की आन बान शान है. हम अहद करते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम और हमारे वतन के साथ हमेशा वफादार रहेंगे. क्योंकि हमारे मुल्क की वफादारी हमारे मुल्क की वफादारी
सबके हुकूक का ख्याल करते रहेंगे। माशरे की तमाम मज़ाहिब के जज्बातों की हमेशा कदर करते रहेंगे। हम ज़ीनतुल कुरान के निस्बान तलबा ऐद करते हैं कि अपने मदरसे की तमाम उसूलों की पाबंदी करते हुए हमेशा फर्माबरदार रहेंगे और ये अमानत वाला जान माल वक्त अल्लाह की रज़ा में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। Now English speech by Patan Sania Khatun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected my teachers, elders and my dear friends, I extend a warm welcome to all gathered here to celebrate this glorious celebration of this 77th Independence Day. Myself, Patan Sania Khatun, I am Zinatul Quran Girls Madrasa student. Friends, as we all know that August 15 is a day of honor and pride for every Indian. On 15th August 1947, all our freedom fighters and revolutionaries freed our country from the British rule. The British came to India and after knowing and examining the environment very carefully, they keeping our weakness in mind and they attacked on us. The British government oppressed the people of India for many years and kept us as slaves. In this freedom fight, we also lost many great people in our country. Our freedom fighters struggled to make our country free from the Britishers and they sacrificed their lives for the nation. Now, in the present time, India is an independent country that has its own constitution, flag, national anthem and other things which make us proud. This is not just a national holiday, but a day to remember all those leaders who sacrificed and efforts made us live in a free India. Independence Day is filled with patriotism and love for one's country. We have set an example in the world that nation comes first, all the other things like religion, caste and ethnicity are secondary. On this day, whole of India remembers and salutes the heroes who gave us this freedom and everyone hoisted the Indian flag on their roof which shows the pride of the nation. Finally, our duty is to promise to contribute to the progress of our nation and hold the dignity of our nation and protect its values. Jai Hind. Now I invite Sheikh Ashia to share her speech in Telugu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకు పెద్దలతో పాటు నా తోటి స్నేహితులందరికీ 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు షేక్ అర్షియా. నేను జీనతుల్ ఖురాన్ బాలికల మద్రసా విద్యార్థిని. ఈ రోజు ఆగస్టు 15 ఆంగ్లేయుల నుండి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం లభించిన రోజు. 1947 ఆగస్టు 15న మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజును ఎంతో దేశభక్తితో అందరూ కలిసి జరుపుకోవడం మన ఆనవాయితీ. వ్యాపారం అనే పేరుతో మన భారతదేశానికి వచ్చిన బ్రిటిష్ వారు మన భారతీయుల అమాయకత్వాన్ని అలుసుగా తీసుకొని మన పూర్వీకులని బందీలుగా బానిసలుగా చేసుకొని పెత్తనం చలాయించి వారి ఇష్టానుసారంగా మనపై దాడులు, దోపిడీలు, అత్యాచారాలు, అన్యాయాలు వంటి క్రూరమైన చర్యలు చేసి చివరకు భారతీయ అలుపెరుగని పోరాటానికి తలొగ్గి దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లవలసి వచ్చిందని ప్రతి పౌరుడు గుర్తించుకోవలసిన అవసరం ఉంది. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు క్రమక్రమంగా ఆక్రమించుకుంటూ దేశాల్లో చాలా భూభాగాన్ని తమ పరిపాలన కిందకు తెచ్చుకొని కొన్ని రాజ్యాలను తమ ప్రభావం తీసుకొని వచ్చారు. 19వ శతాబ్ది తొలినాటికి వారి ఆధిపత్యం పూర్తిగా స్థిరపడిపోయింది.
సమయంలో బ్రిటిష్ రాణి భారత సామ్రాజ్యానికి అధినేత్రి అయ్యాక మన దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన కిందకు వచ్చింది. బ్రిటిష్ పాలన నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేందుకు జరిగిన అనేకమైన పోరాటాల్లో అందరూ కలిసి పాల్గొన్నారు. అయితే మన దేశానికి స్వాతంత్రం పొందడం కొరకు మన అమర వీరులు కొందరు హింసా మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటే మరికొందరు అహింసా మార్గాన్ని ఎన్నుకొని చివరకు ప్రాణత్యాగాల ద్వారా స్వాతంత్ర భారతదేశానికి సాధించారు. ప్రపంచ భారతీయ నేపథ్యంలోనూ భారతీయ స్వాతంత్ర పోరాటాల ఫలంగాను దేశానికి 1947 ఆగస్టు 14న అర్ధరాత్రి సమయంలో స్వాతంత్రం వచ్చింది. కనుక మనము మన దేశానికి స్వాతంత్రం సమర యోధులను గుర్తించుకుంటూ వారి త్యాగాలను స్మరిస్తూ వారి అడుగు జాడలలో నడుస్తూ అందరం ఐకమత్యంతో మెలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలిగినది భారతదేశం ఎన్నో ఐక్యత కలిగినది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఎన్నో కులాలు, మతాలు, జాతులు, సంస్కృతులు, ఆచారాలు, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగినది మన దేశం. మరియు తారతమ్యం లేకుండా జాతీయ పండుగలను కలిసిమెలిసి జరుపుకొని జాతీయతను చాటి చెప్పే ఐక్యతను కలిగినది మన భారతదేశం. మేరా భారత్ మహాన్. జై I హింద్. invite Sheikh Nafisa and Sheikh Asifa to sing Nazm on Independence Day. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, खूने अजदाद का तू सिला है वतन। जब जरूरत पड़ी हमने ये सर दिया, टीपू सुल्तान अशफाक हैदर दिया। सिंध कासिम का मबूद लश्कर दिया, हमने महमूद आजाद जोहर दिया। कितने कुर्बानियों से मिला है वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। तुझको आजाद हमने किया है वतन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, खूने अजदाद का तू सिला है वतन। सर से बांधे कफन होके सीना सुपर, तेरे दुश्मन से लड़ते रहे बेखतर। कैद खाने में झेले सितम हम, मगर तेरा सौदा न हमसे हुआ उम्र भर। अपनी ऐसी मिसाली वफा है वतन, तुझको आजाद हमने किया है वतन। तुझको आजाद हमने किया है वतन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, खूने अजदाद का तू सिला है वतन। वक्त तकरीब से तेरी तामीर तक, वक्त तहकीर से तेरी तौकीर तक, जहर बंदिश से आजादी के शीर तक, लेके कन्या कुमारी से कश्मीर तक, अपनी कुर्बानी हर जगह है वतन। तुझको आजाद हमने किया है वतन। तुझको आजाद हमने किया है वतन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, खूने अजदाद का तू सिला है वतन। तुझ पे जीनत न आए
वतन खूने अजदाद का तू सिला है वतन खूने अजदाद का तू सिला है वतन। जज़ाकल्लाहु खैरा। Our talented students have arranged a independence story act of some freedom fighters. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम पठान परवीन। मेरा नाम शेख अर्शिया तबस्सुम। मेरा नाम शेख अर्शिया। आज हम आजादी की कहानी सुनाएंगे। मेरा नाम शेख सुहाना। मेरा नाम शेख मुसद्दिका सुल्तान। मेरा नाम शेख अफीफा। हमारा रोल ब्रिटिश प्लस है। मेरा नाम शेख सना कौसर। मेरा नाम शेख समीरा। मेरा नाम शेख समीरा सुल्ताना। मेरा नाम शेख आफरीन। मेरा नाम डी सना है। मेरा नाम शेख सबा कौसर। हमारा इंडियन है। मेरा नाम शेख सुहाना इकबाल। मेरा कैरेक्टर मंगल पांडे। मेरा नाम शेख आफिया। मैं झांसी की रानी हूँ। मेरा नाम शेख सुहाना वैजा। मेरा कैरेक्टर कर्नल सिंह सारा भाई। मेरा नाम शेख सनाफरा। मेरा कैरेक्टर राजगुरु है। मेरा नाम शेख सजवा। मेरा कैरेक्टर भगत सिंह। मेरा नाम शेख तबस्सुम। मेरा कैरेक्टर सुखदेव। मेरा नाम शेख सबिहा। मेरा कैरेक्टर जवाहरलाल नेहरू। मेरा नाम शेख सना अफजा। मेरा कैरेक्टर महात्मा गांधी है। मेरा नाम पठान सीमा सादिया। मेरा कैरेक्टर सुभाष चंद्र बोस। भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, हमारा भारत बहुत ही अजीम भारत है। आपस में सारे देशवासियों मोहब्बत और भाईचारे के साथ जीना हमारे मुल्क का दस्तूर है। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से अब वो भाईचारा खतरे में आ गया। हमारे मुल्क को दूसरे देशों से अच्छा संबंध था। भारत के आर्टिफिशियल्स और हैंडक्राफ्ट दुनिया भर में लोग पसंद करते थे। इन्हीं कीमती चीजों की वजह से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसी दौरान हमारे इंडिया में 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत आए और उन्होंने भारतवासियों से कहा कि हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। और वो धीरे धीरे भारत के हर एक जमीनों और हर एक कानून पर अपना हक जमाने लगे और हर एक भारतवासी के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगे और हर एक भारतवासी को अपना गुलाम बना लिया। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस सोने की चिड़िया के पर को काटने में ब्रिटिशर्स को ज्यादा समय नहीं लगा। हर भारतवासी पर बहुत जुल्म करते थे। अगर कोई उनके खिलाफ बात करता तो उसकी जुबान काट देते थे। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी। इंडियंस के साथ भेदभाव करते थे। बिजनेस के नाम पर किया गया धोखा भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि इसे वापस खुदेड़ने के लिए लाखों ही जानें गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। फिर भारतवासियों पर भेदभाव करते थे, जैसे कि भारतवासी इंसान ही ना हो। पर इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी 1871 में मंगल पांडे। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज भारतवासियों के घर में उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत को इनसे आजाद करवाने की ठान ली। मारो फिरंगी को। पर अब तो अंग्रेजों ने उनकी एक भी न सुनी। उनके बदले उनको फांसी की सजा दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। मंगल पांडे की शहादत ने एक नई लहर शुरू की। अब हर भारतीय अपने आजादी की मांग रखने लगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिससे अंग्रेज पूरी तरह खोखला गए। इसके साथ ही आवाज उठाने के लिए निकली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपने झांसी का आत्म संपूर्ण नहीं होने दूंगी, वो भी
करके सब शहीद होते गए और उनमें से सबसे छोटे उम्र के शहीद गद्दर सिंह साराभाई थे। वो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। वंदे मातरम। भगत सिंह, जिनका बचपन से एक ही सपना रहा कि भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना, 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज मासूम और निर्दोष भारतीयों को गोलियां जलाकर हजार ही लोगों को मार दिया, जिनका प्रभाव भगत सिंह पर बहुत पड़ा और उन्होंने जवान होते होते इतनी किताबें पढ़ी कि जिससे उन्होंने जाना कैसे खुशहाल देश बनाया जा सकता है और उन्होंने लोगों को धर्म, जाति, भेदभाव से दूर किया। फिर इस समय फिर से अंग्रेज डर गए और अब उन्हें लगने लगा कि भारत को छोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियां राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इतने सारे कई भारतीय लाखों संख्या में शहीद हो चुके थे। भगत सिंह की शहीदी के बाद सभी एकजुट मिलकर आजादी की तरफ बढ़े पड़े। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी को भी देश को आजाद करवाने के लिए काफी श्रेय दिया गया है, जिसके अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी एक बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। पर आजादी की तरह बढ़ते हुए भारत को देखकर ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटना शुरू किया और भेदभाव आपसी नफरत की रूप ले गई। जब दोनों धर्मों के लोग अपनी देश की आजादी की मांग की, आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आजादी मिली। भारत छोड़ो, करो या मरो, अब आराम हराम है, मुकम्मल सौगात का हुसूल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर ध्वज लहराया और जवाहरलाल नेहरू ने तकरीर की जिसका नाम ट्रस्ट विद डेस्टिनी है। वो यही तकरीर की थे। बहुत साल पहले हमने तकदीर के साथ एक कोशिश की थी। अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने यहद को मुकम्मल या मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि काफी हद तक अदा करेंगे। आधी रात के वक्त जब दुनिया सोएगी, हिंदुस्तान जिंदगी और आजादी के लिए बेदार होगा। ये लम्हा ऐसा आता है जो तारीख में बहुत कम आता है। जब हम पुराने से नई की तरफ कदम रखते हैं, जब ये जमाना खत्म हो जाता है, जब किसी कौम की रुख जो तभी ऐसे से दबी हुई थी वो बोल उठेगी। ये मुनासिब है कि इस अहम लम्हे में हम हिंदुस्तान और उसके लोगों की खिदमत और इंसानियत के अब भी बड़े मकसद के लिए वक्फ की अहद ले और खिदमत के साथ साथ रहने का यहद किया, यानी प्लेज, और नेशनल एंथम जन गण मन को गाएं। इस तरह मिली हमारी आजादी। अंतिम में ये मेरे शब्द हैं, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, पूछ कर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। एक देश
देशवासियों जश्न मनाओ, स्वतंत्रता दिवस आया है। जय हिंद। Now I invite Sheikh Uzma and Sheikh Muskan to sing Nazm on current situation in India. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाएं। वो देश जहाँ भेद सबूतों के है मदफन, अब चोर लुटेरों के वहाँ हो गए मस्कन। कानून के रखवाले हैं कानून के दुश्मन, मतलब के लिए अपने ही कानून बनाए, मतलब के लिए अपने ही कानून बनाए। जिंदा है मगर जिंदगी रूठी हुई हमसे, जख्मी है दिले अहले वतन दर्द आलम से। बदहाल है इंसान यहाँ जुल्म सितम से, हम कैसे भला लब पे हंसी अपने सजाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं। ईमान पे हमला कभी खतरे में शरीयत, मंदिर पे सियासत कभी मस्जिद पे सियासत। कानून है आजाद ना आजाद अदालत, अब कौन सी आजादी का हम गीत सुनाएं, अब कौन सी आजादी का हम गीत सुनाएं। सड़कों में पड़ी लाश भी मोहताज कफन है, गुलशन की तबाही के लिए सारा जतन है। माली के ही हाथों मेरा बर्बाद चमन है, हम फख्र से अब कैसे तिरंगी को उड़ाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बंजर है ज़मीं उस पर शजर कैसे उगाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं। जो शख्स मुसलमान है वो गद्दार वतन है, इंसाफ का अब कत्ल यहाँ आम चलन है। सच्चों के लिए हुस्न जज़ादार रसन है, लिखे जो यहाँ सच उसे सोली पे चढ़ाए, लिखे जो यहाँ सच उसे सोली पे चढ़ाए। फाकों से बिलखते हुए बच्चों की फुआएं, मजदूर गरीबों की जिगर सूज सदाएं। जीनत न भुला पाएंगे मजलूम की हाय, हम कैसे भला हम खुशियों की अब कैसे हम खुशियों की अब दीप भला कैसे जलाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाएं। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन। Now I would like to request our respected principal sir Sayyid Zakiullah Basha to share valuable words. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौमे आज़ादी का दिन है ना? हम सबको मालूम है यौमे आज़ादी का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें? इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तेलुगु में क्या बोलते हैं? स्वातंत्र दिनोत्सव। ठीक है, इंडिया जो है अपना 77th इंडिपेंडेंस डे आज क्या है सेलिब्रेट करता है, नहीं? तो हम सब के लिए क्या है इंडिपेंडेंस डे? नेशनल फेस्टिवल है, जातीय
पंडुगा। सिर्फ क्या है हिंदुस्तान में रहने वाले खाली हिंदू लोगों के लिए मनाना बोल को है क्या काम? तो ऐसा नहीं, मुसलमान भी मनाना है, ईसाई मनाना है, दलित, सिख, पारसी और सब लोग क्या है मनाने का त्योहार है ये। इट्स ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ एवरी इंडिया। नहीं, हर एक हिंदुस्तान का बाशिंदा जरूर क्या है मनाना है। क्यों मनाना है? आजादी का दिन को हम सब क्या है मनाने की जरूरत क्यों है? क्यों मनाना हम सब? क्योंकि आजादी चुपके क्या है मिलने की चीज नहीं, इसके पीछे बहुत अजीम कुर्बानियां जो है हमारे बड़े, हमारे पुरखे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियां, फ्रीडम फाइटर्स बहुत क्या है जद्दोजहद करके हमारे तक ये आजादी को क्या है पहुंचाई। इस वास्ते क्या है हमें इसको मनाना, ताकि हमारे अंदर भी क्या है उनकी जो कुर्बानियां और उनके जो फिक्र और उनके जो तमाम जितने भी क्या है मंसूबे थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में उन्होंने रचकर अपने जान माल सब कुछ क्या है वक्त को लुटाकर हमारे तक क्या है आजादी को दिए। तो ये आजादी हमारे को मिलने की वजह क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी देने वालों को हमें जरूर क्या है याद रखना। अगरचे हमें कुर्बानी देने वालों को अगरचे हम याद करना छोड़ देंगे तो हमारी तारीफ क्या है मिट जाती। क्या इस वास्ते हर वर्ष, हर ईयर, हर साल हम क्या है टोटल हर जगह भी, हर स्कूल हो, कॉलेज हो और क्या है सरकारी दफ्तर हो या इनफिरादी तौर पर भी हो, हर कोई क्या है इसको जरूर ये अपना क्या है आजादी का पैगाम हर कोई क्या है देना है। हम हमारे पुरखों को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों की हमें क्या लाज रखकर कदर करते हैं, ये बात को हमें जरूर क्या है याद रखना है। नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे हमें स्पीचेस और दूसरे क्या है कल्चरल एक्टिविटीज और इसी तरह क्या है हमारे गेस्ट के स्पीकर्स के जरिए से हो, क्या किताबों के अंदर भी बहुत सारे हमारे को क्या मालूम है। नहीं, किताबों के अंदर भी सब्जेक्ट है, फ्रीडम फाइटर्स के हिस्ट्रीज है। तो ये तमाम लोगों के जो जिंदगियां है क्या हमारे लिए क्या नमूना है, आइडियल है कि वो लोग क्या है किस तरह ब्रिटिशर्स को क्या है मुकाबला करें। ब्रिटिशर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर क्या मकसद से आए लोग? तिजारत, बिजनेस बोल को क्या है हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए। आए सो टाइम पे वो लोग बहुत क्या है आजिजाना अंदाज में क्या बहुत क्या है हिंदुस्तान के वक्त के बादशाहों को कदर करते हुए उनको क्या है बहुत साथ देने का वादा करके आगे बढ़ा को हमें भी तुम्हारे को फायदा पहुंचाती बोलने के मकसद से वो लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए, अच्छा बनकर आए उन्होंने। लेकिन बाद में अच्छे नहीं रहे उन्होंने, बाद में हमारे को क्या है उन्होंने बुरा साबित हुए, जालिमा साबित हुए, लुटेरे साबित हुए वो लोग। अगरचे हमें तारीख के पन्नों को अगरचे पलटा कर देखेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जितने क्या है जुल्म को क्या है ढाया है, अगरचे इसका तस्करा हम करेंगे तो क्या है हमें इतना तकलीफ होती कि एक इंसान और एक इंसान के साथ क्या है इतना बेरहमी के साथ क्या है कैसा क्या है पेश आता है बोलो हमारे दिल क्या है तड़प जाती। क्या इस तरीके से क्या है वो लोग हमारे साथ क्या करें जुल्म और ज्यादती करी और हमारे खजानों को क्या है लूट कर गए। आखिर में एक दो बोल को बोल सकते नहीं, इसके अंदर क्या है हर किस्म के हर कौम के लोग हर वक्त क्या है कुर्बानियां दी है। इनके मुकाबले में तकरीबन क्या है 200 साल की हुकूमत उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर क्या है करे। उससे पहले हमारी हिंदुस्तान के अंदर क्या है जमहूरियत कैसी थी, आपस में मिलनसार,
एक दूसरे का मोई मददगार, एक दूसरे का हमदर्द, एक दूसरे का साथी, इस तरीके से क्या है उन्होंने क्या मिलजुल कर थे। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स आने के बाद हमारा अच्छापन उनको पसंद नहीं आया, हमारा मिलनसार, हमारे आपस का भाईचारा उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या करे, हमारे दरमियान में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को क्या है इम्प्लीमेंट करे। डिवाइड एंड रूल कर को क्या हमारे ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या है हुकूमत करे जैसा का, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करे जैसा का, एक दूसरे के ऊपर क्या दुश्मनागी करे सर का क्या है, ऐसे बहुत सारे क्या है उन्होंने पॉलिसियां हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करी। तो वो वक्त पर जो है उनकी ताकत को जो बर्दाश्त नहीं कर पाए वो लोग उनके क्या है सामने घुटने टेक दिए। जो उनके ताकत के सामने मुकाबला करने के लिए जो आगे बढ़े वो लोग शहीद का मर्तबा पाए। जैसा कि हमारी तारीख में एक दो नहीं बल्कि क्या है कई हजारों की तादाद में क्या दीनी एतबार से दुनियावी एतबार से भी बहुत सारे हमारे मुसलमानी कौम की क्या है अजीम कुर्बानियां जो ब्रिटिशर के खिलाफ में दिए। उसके वजह से आज भी क्या है हमारे इंडिया गेट के ऊपर तकरीबन क्या है 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं तकरीबन 60% से ज्यादा क्या है मुसलमानों की कुर्बानियां ये मुल्क को आजाद करने में क्या है लगी। ये हमारे लिए बहुत ऊंची बात है, बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन फिक्र की बात भी है, वो क्या है कुर्बानियां वो लोग दिए, ये सारी कौम के लिए फख्र की बात रही। मगर फिक्र की बात क्या है, आज हर एक मुसलमान क्या ये तारीख को क्या है नहीं जानता, ये फिक्र की बात है। मुसलमानों को अक्सरियत हमारे हिंदुस्तान की तारीख के बारे में मालूम नहीं, कौन कौन क्या क्या कुर्बानियां दी है मालूम नहीं, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नामा तक भी मालूम नहीं। क्या ऐसी हालत में आज हमारी कौम जो है ये बहुत क्या है फिक्र करने की बात है। ऐसा बोलकर हमें क्या है छोड़ डालना नहीं, बल्कि हमें इसको क्या है मालूमात कराना, हमें खुद मालूम कर लेना और दूसरों तक क्या है हमें जैसा दीन की बात बताते हैं, जो दीन हमें सुनते हैं अमल करते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने पर हमारे लिए क्या है नेकी सवाब है और जिम्मेदारी है। इसी तरह हमारे जंग आजादी जंग की सूरत में जो भी क्या है हालात पेश आए वो तमाम चीजों के बारे में हमें हमारे आने वाले नस्लों को भी क्या है बताना, ये हमारी क्या है जिम्मेदारी है। अगरचे हमें अपनी तारीख को अगरचे हमें भूल गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है बर्बादी का जरिया बन जाता है ये मसला। इस वास्ते आने वाले पीढ़ियों तक जरूर क्या है हमें क्या क्या हालात कैसे कैसे क्या है मसाइल को हमारे बड़े बुजुर्गाने दीन और हमारे उलमा क्या कैसे कैसे कुर्बानियां देकर क्या है उन्होंने हमारे तक क्या है देश को आजाद करा को दिए। ये तमाम चीजों को जरूर हमें मालूम कर लेना। हमारे को आमतौर पर सबसे ज्यादा मालूम हो सके जंग आजादी के अंदर क्या महात्मा गांधी जी, चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अल्लूरी सीतारामराजू, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से क्या है चंद लोगों के बारे में मालूम। लेकिन इनके अलावा क्या हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में पूरे मुसलमान कौम को मालूम नहीं। नवाब सिराजुद्दौला इनके बारे में मुसलमानों को मालूम नहीं। अशफाकुल्लाह खान इनके बारे में अक्सरियत मालूम नहीं। इस तरीके से अगर चाहे हमें फहरिस्त गिनाते गए मायूस होना पड़ता। इतने हमारे जंग आजादी में इतने फ्रीडम फाइटर्स क्या है हमारे कौम के रहने के बावजूद आज तक हमारे को इनके बारे में नहीं मालूम। मुसलमानी कौम को अक्सरियत इनके नामा मालूम नहीं, इनके क्या है कारनामे मालूम नहीं, और ये लोग जो है क्या क्या नारे दी हिंदुस्तान की आजादी के खातिर ब्रिटिश वालों के मुकाबिल में क्या क्या नारे दी ये चीज अभी मालूम नहीं। तिरंगे की जो है
तिरंगा बनाने में मुसलमानों का क्या है रोल है। सबसे पहले मुसलमान क्या है तिरंगा बनाने में अपना किरदार क्या अदा करे, वो जानना जरूरी है। अगरचे हमें भूल गए तो हमारे को क्या है, हमारी तारीख क्या है हमारे से दूर हो जाती। जब हमारे को दूसरे लोग हम पूछते हैं, क्या बोल को पूछते हैं, यह हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, ये तुम्हारा क्या भी नहीं, तुम्हारा क्या किरदार है, तुम्हें क्या करें, तुम्हारे इतना कौन कौन क्या क्या करें तुम्हें बोल को पूछते हैं। अगर हमें आज नहीं मालूम कर को दूसरों तक नहीं बताए तो क्या है आज इस दौर के अंदर लोगों के सामने हमें चुप रहने की जरूरत पड़ती। कहीं बोलते हमारे को मालूम नहीं होने की वजह से क्या चीजों को हमें सीखना है, समझना है और हमारे अंदर क्या है हमें क्या एक इनकलाबी जज्बात को क्या है पैदा करना। यह मुल्क सबका है, यह मुल्क के अंदर क्या सबसे ज्यादा कुर्बानी, सबसे ज्यादा खून, सबसे ज्यादा पेड़ों के ऊपर क्या है क्या अपने क्या सरों को क्या है लटकाने वाली कौम कौन सी, मुसलमान है, हम लोग हैं, हमारे बड़े हैं। तो आज हमें उनके बारे में क्या मालूम कर लेना है। बाशिंदा बनने की बाहैसियत हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो हम क्या है मुल्क के साथ वफादार रहना। मुल्क के साथ वफादारी हमारा ईमान का क्या है हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जिस मुल्क में रहते हैं तो वो मुल्क की तुम्हें वफादारी करना है, इरशाद फरमाया। तो अब हमें क्या है हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक है ना, तो हमारे ऊपर क्या है हिंदुस्तान अजीम मुल्क है हमारा, क्या ये अजमत वाला क्या है क्या मुल्क के अंदर हमें रह रहे हैं, जी रहे हैं। इसी क्या है धरती के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर हम क्या करते हैं जीती हैं, कमाती हैं, खाती हैं, नहीं, और हमारी इबादत, हमारा सजदा भी इसी मुल्क के मिट्टी के ऊपर हमारी इबादत को अदा की जाती है। नहीं, यहाँ तक के हम यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ तक के जब हमारी मौत भी आ जाती है तो हम इसी मिट्टी के अंदर दफन होने वाले हैं। नहीं, तो देखो ये मिट्टी से क्या हमारा कितना वफादारी, कितने मोहब्बत होना जरूरी है। नहीं, इस वास्ते क्या अक्सरियत क्या है लोग क्या कहते हैं मुसलमान क्या है फ्लैग होस्टिंग से दूर और क्या है क्या मुल्क के वफादारी से दूर और क्या है मुल्क के क्या खिदमत से दूर और मुल्क के तारीख से क्या ना वाकिफ है। इस तरीके से क्या है लोग समझते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारी है, सबसे ज्यादा दिल के अंदर अजमत हमारे को होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या बड़ों की विरासत है ये मुल्क की खिदमत हमें करना और हमारे बड़ों की क्या कुर्बानियों का नतीजा है आज क्या है क्या मुल्क जो आजाद हुआ। इस वास्ते वो परंपरा क्या आज भी क्या जिंदा है, जिंदा रखना है। कब तक रखना, हमें जब तक जिंदा रहती है इंशाल्लाह, जब तक क्या है मुल्क के साथ वफादार रहना। और क्या मैदान के अंदर जब भी हमारे को अगरचे ये देश की खातिर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले क्या है क्या सीना तान कर क्या है क्या दुश्मन के मुकाबिल में क्या देश के वास्ते कुर्बान होने की हिम्मत, ताकत, जरूरत, कुर्बानी देने के लिए हर हमेशा क्या है आगे रहने की जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है मुसलमान की। ये बात हर मुसलमान को क्या है जानना है, समझ में। तो क्या है आज का दिन हमारे भारत हिंदुस्तान का आजादी का दिन है। तो आजादी क्या है मिलने के बाद हमारा देश अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हुआ, तरक्की के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। क्या यहाँ तक के क्या आज हमारे हिंदुस्तान से जो मिसाइल्स जो जाती हैं क्या परसों चंद्रयान 3 भी क्या है गया, कहाँ गया चांद के ऊपर गया, नहीं वहां तक भी हमारे तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची। समंदरों पे जहाजा, आसमान में क्या जहाजा और मैदान के अंदर एक मजबूत आर्मी, हमारा जो सिस्टम है बहुत सारे दुनिया के अंदर तारीफ काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर एक हिंदुस्तानी का क्या है क्या फख्र की बात है। लेकिन अफसोस क्या है हमारा मुल्क सोने की चिड़िया से के नाम से क्या है जाना जाता है, लेकिन बहुत क्या है शर्मअंगेज वाकयात ये सियासत के जरिए से क्या है क्या बदल गया। लेकिन हमेशा के लिए
हमारा हिंदुस्तान का नाम सबसे क्या है आगे गूंजता रहेगा। क्या तो अच्छे काम कर कर जो अच्छे अच्छे क्या है कुर्बानियां देकर अच्छे नताइज को जब हमें क्या है लाएंगे तो क्या है हर हमेशा मुल्क का नाम आगे रहेगा। तो मुल्क की तरक्की में, मुल्क को क्या है आगे बढ़ाने में, मुल्क के अंदर भाईचारा कायम करने में क्या है एक अच्छा क्या है पैगाम देने के लिए हर मुसलमान अपने जात से जरूर कुछ ना कुछ जरूर क्या है कोशिश करने के लिए आगे बढ़ना क्या ये क्या है हमारे मुल्क की वफादारी का एक सबूत होता है। करेंगे सभी। The anthem is the heart of any Indian. So I would like you to stand up and sing anthem along with Ashya Tabassum. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब